Good morning, class. I am welcome to this your sixth semester. I am Shashi Bhushan Mishra. I have been in this institute since last 11 years. My educational qualifications are I have done ME in CAD/CAM and CDAC. I have approximately 4 years of industrial experience, which includes travel and tourism, core mechanical and IT industry. I am going to teach you the subject computer software application, that is 6ME02 CSA 2. Now, the very first chapter in this is database and database management system. So what I'll do, I'll give you the entire syllabus, then what are the books you must refer, what are the contents of each and every units, then what are the online books that I'll also give you, and again what is included in the practical and everything. The material in soft copy, I will provide you all the different material that is required for this subject. Now the very first unit that will begin directly is database and database management system. So this subject is basically all about database. So for mechanical people, this is something different than our regular mechanical subjects. For us mechanical people, this is something different than our regular mechanical subject. Here we have everything about data and database management systems and database management systems like SQL, Oracle and so other things. So what I want you people is, the approach for this subject would be a different one. What we used to do in our mechanical subjects, we used to study the equipment, we used to study the process. Here you have to study what is data and how it has to be managed, and this has a very huge and wide application in each and every industry. Especially in the IT industry, database management is a very bigger concept. So let us begin directly. The very first unit is database management system, that is in short we call it as DBMS. So before actually beginning with DBMS, we must first understand what do you mean by data, what do you mean by database management system, and the most important question is why it is at all needed. इन सब की जरूरत क्या है और क्यों है, why it is at all needed, what is database and why it is needed. So here if you can see certain definitions like a database is a container that hold the interrelated data. What is a database? Is a set of data that has regular structure. Database container is management system, is a collection of computer programs, etc, etc. So what we'll do, we'll first understand what do you mean by data. So here you can see some things like यहाँ पे कुछ लिखा है, शाम, पोटे कॉलेज, स्विफ्ट डिजायर, ₹45,000, मेटलर्जी, then diary, MS Access, MS Word, Notepad and SQL. So all this is data. Now data can be different for different things. When we talk in perspective of this particular subject, that is CSA, we here mean by the recorded facts that we call as data. हर किसी के लिए डेटा अलग अलग हो सकता है. Now data can be anything, that is शाम. शाम मतलब क्या है? It is a name of someone. शाम that means name of someone. किसी का नाम है शाम तो वो भी एक डेटा है. पोटे कॉलेज that is the name of our institute, that is also data. स्विफ्ट डिजायर, it is a car. ये एक कार है तो ये भी एक डेटा हो गया. ₹45,000. Now how much amount? That is 45,000 in terms of rupees, that is also data. Metallurgy is one of the subjects you have already studied. सो दीज आर द डिफरेंट डेटास. ये अलग अलग डेटा है. अब जैसे सपोज यहाँ पे मैंने और भी डेटा दे दिया कि बाइसिकल, ट्राइसिकल, स्पेक्स, देन गीतांजलि, देन एनी नेम ऑफ द ट्रेन, एनी प्लेन. सो दीज आर ऑल डेटा. दीज आर एंड डेटा मीन्स बेसिकली रिकॉर्डेड फैक्ट्स. बट ये हमारे किस काम का है डेटा? तो दुनिया में तो बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बहुत सारा, हर चीज़ का डेटा. जैसे अब बात करूँगी, यू कैन टॉक अबाउट योर आधार कार्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस, योर एग्जाम फॉर्म, then your application form, your admission form. So all that is data. Now we come across a word that is called as interrelated data. हमने एक शब्द देखा है, that is interrelated data. Now in this sentence you can see Sham is studying metallurgy at Pote College and drives Swift Desire. Okay, that means Sham is studying metallurgy at Pote College. So Sham and metallurgy are related. Pote College, Swift Desire and Sham and metallurgy, they are all related. That means Sham, metallurgy. तो यहाँ पर हम जितने वर्ड्स दिए, ये जो हमारा डेटा था, शाम, पोटे कॉलेज, स्विफ्ट डिजायर, मेटलर्जी, दे आर ऑल रिलेटेड बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये जो एक पर्सन है इसका नाम है श्याम,
ये पोटे कॉलेज में पढ़ता है, ही स्टडीज मेटालर्जी एंड ही ड्राइव दिस पर्टिकुलर व्हीकल स्विफ्ट डिजायर. You can again add he pays a fees of 45,000 rupees. So this is the interrelated data. The data related to that particular person. उस पर्सन को रिलेटेड वो डेटा सब कुछ वहां पर है. So that is interrelated data. Now if this is interrelated data, तो ये तो समझ में आ गया डेटा मतलब क्या हो गया. जैसे अगर मैं कुछ भी लिखूं CAT cat. So cat is also a data, that is a name given to specific origin. एक जानवर को जो हमने नाम दिया है, दैट इज द ओरिजिन मस्ट बी फ्रॉम द फैमिली ऑफ कैट्स, सो उसका नाम है कैट, दैट इज ऑल्सो अ डेटा. नाउ द सेकेंड पार्ट इज, अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस मतलब क्या है. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस. सो नाउ हियर यू कैन सी डेटा एंड डेटाबेस. तो यहां पर जितनी भी हमने एंटिटीज दिए, अब एंटिटी मतलब डिफरेंट वैल्यूज. जैसे यहां पे हमने पहले लिखा है name, here you have given the mobile number, here it is email id, here age, here this particular thing subject, here is city. अब यहां पे हमने किया कि एक पर्सन है सपोज आकाश, his mobile number is, we are giving just example, his mobile number is suppose 12345 and his email id is abc@gmail.com. his age is 32, then he teaches suppose the subject CYZ or he is learning that subject. Suppose he teaches that subject and he resides in city AMT, that is Amravati. So this is an interrelated data. All this data, this is an interrelated data. A particular person Akash having mobile number this one, having email ID this one, having this age 32, is teaching the subject CYZ and he is from Amravati. So that is data. Now and this data is related. मतलब आकाश, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एज, उसका सब्जेक्ट एंड हिज सिटी, दे आर रिलेटेड. नाउ सपोज दिस डेटा इज फॉर 9 पर्सन्स. सो हियर यू हैव सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देन आकाश, अमित, अजय, रॉय, राज, रानी एंड दीज आर द सर्टन पीपल्स. वी आर हैविंग डेटा फॉर ऑल ऑफ देम. हमको सबका डेटा हमारे पास अवेलेबल है. सो व्हाट वी हैव डन कि हमने इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है. यू कैन सी दिस टेबल. एक टेबल में हमने सब डाटा अरेंज किया हुआ है. ऑल दिस डाटा इज अरेंज्ड इन अ टेबल. नाउ हमने इसको नाम दिया है सपोज D1. नाउ फॉर एग्जांपल दिस डेटा इज फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट D1. एक डिपार्टमेंट का डेटा है ये D1. ठीक है. तो अब मुझे क्या चाहिए, सपोज आई वांट टू नो हु इज टीचिंग द सब्जेक्ट CYZ. ओके, सो इफ आई नो हु इज टीचिंग द सब्जेक्ट CYZ, हिज नेम इज आकाश. Then who is teaching the subject ABC? That particular person is Raj. Then what is the mobile number of Akash? It is 1234. What is email ID of Raj? This is this one. Then where does Raj resides? That is Bombay or Mumbai. Then where does this particular Sham resides? Then that is Ajni, Nagpur, whatever it may be. So you can access this data. हमको जो भी इंफॉर्मेशन लगेंगी वो हमको एक्सेस करने हैं. So we have written it in a tabular form. So I hope you understand this. What do you mean by data? What do you mean by database? Database is collection of data wherein you can find the data related with an individual, with a number of individuals. The data may be their mobile number, their date of birth, their email ID, their height, their personality and so many things. And then we arrange it in a specific table and you can name that table. You can name that table as D1. जैसे हमने इसका नाम दिया था टेबल का D1. जैसे हमारा जो अटेंडेंस होता है तो हमने उसका नाम दिया अटेंडेंस. व्हाट इज देयर इन अटेंडेंस? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन डेट एंड देन वेदर ही इज प्रेजेंट और एब्सेंट, व्हिच वी हैव मार्क्ड मैन्युअली. सो दैट इज अ डेटाबेस. सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, एंड देन वी अगेन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटर रिलेटेड डेटा. तो यहाँ पे हमने देखा था दिस इज ऑल डेटा ऑफ अ डिपार्टमेंट D1 where Akash, Amit, they are all from one department. So they are interrelated. They are teaching different subjects. Again, in that also, the particular person, Akash, his mobile number, email, they are all also related. So that is interrelated data. Now, अब उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे we have written this many things. So अब suppose अगर ये मुझे डेटा कहीं पे स्टोर करना है तो what the basic thing is that I will store it in a particular diary. मैं एक डायरी में इसको स्टोर कर लूंगा सो दैट एवरी टाइम आई कैन ओपन दैट डायरी एंड आई कैन सी XYZ ABC एंड सो मेनी थिंग्स. वॉट एवर आई हैव टू चेक. सपोज आई हैव टू चेक कि विच सब्जेक्ट इज हु वन इज टीचिंग विच सब्जेक्ट, ही इज फ्रॉम विच सिटी. तो मैं एक डायरी में नेट कर लूंगा, मैं आराम से इसको देख सकता.
ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये जो हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सपोज ये सब डेटा मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इसको सबसे आराम से स्टोर कर सकता हूँ डायरी में, और मुझे जब भी चाहिएगा मैं डायरी ओपन करके देखूंगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टेबल, इट इज well and fine. Here it is only about 9 people. But now suppose here the information is about 900 people. Now you have stored information about 900 people, and anytime that you want to see which subject Sham is teaching, so at that time you have to open that diary. वो 900 पेजेस की बुक आपको ओपन करना पड़ेगा और फिर आपको एक एक पेज चेक करना पड़ेगा हर बार। अगर आपको अजय का मोबाइल नंबर देखना है तो पूरा पेजेस ढूंढ के निकालो। तो हर बार आपको डेटा रिट्रीव करना, दैट विल बी ए टीडियस वर्क। अगर 900 की जगह मैं 9000 कर दूं, देयर आर 9000 डिफरेंट थिंग्स, अब उसमें से आपको सर्च करना है, सो दैट विल बिकम अ वेरी हेक्टिक टास्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिट्रीवल, जो हमको डेटा रिट्रीव करना पड़ता, मतलब हमको जो डेटा चाहिए, डेटा हमको रिट्रीव करना, ये एक पहला इशू है जिसकी वजह से ये जो डेटा हम डायरी में लिखने की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड फिजिबल। नाउ सेकेंड थिंग इज, ये हो गया एक रिट्रीवल पार्ट। सपोज अब ये जो पर्सन था, दिस वन, इसका सिटी चेंज हो गया अकोला, तो मैंने क्या किया, इसको एडिट कर दिया अकोला। लेकिन अब एक दूसरा डिपार्टमेंट है D2, और ये पर्सन वहां पर भी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो मैंने D1 में से तो इसका चेंजेस किया है, सेम चेंजेस मुझे D2 में भी करना पड़ेगा। लेकिन सपोज अब ऐसा 10 जगह पे पढ़ा रहा है वो बंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जगह पे चेंज किया, सपोज 2 जगह पे चेंज नहीं हुआ डेटा में मैन्युअली, तो क्या होगा कि 2 जगह पे गलत डेटा अवेलेबल है, सो दैट इज अगेन एन इशू। तो ये फिर मुझे एक और इशू मिला गया। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स वी शुड हैव अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट वी शुड हैव, वी शुड हैव अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हमारा एकदम बिगिनिंग था, अब हम देखेंगे डेटाबेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। A database is a collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. अब मैं आपको बताता हूँ, आपने डायरी नहीं, चलो आपने बोला कि सर वी आर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वी आर फ्रॉम टेक्निकल वर्ल्ड, सो व्हाट विल डू कि ओके सर वी आर फ्रॉम टेक्निकल वर्ल्ड, सो व्हाट विल डू कि विल स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। आपने इसको डी ड्राइव में कहीं भी सपोज स्टोर किया, या फिर ई ड्राइव में अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे स्टोर किया है। तो अब क्या होगा, अब सपोज आपको जब भी इंफॉर्मेशन लगेगी तो आप क्या करोगे, वो डी ड्राइव से या ई ड्राइव से एक्सेस करोगे। यू विल एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर स्पेसिफिक ड्राइव एंड देन यू कैन राइट अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। आप एक प्रोग्राम लिख सकते हो, उससे उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, यू कैन इजीली गेट इट। लेकिन अब अगर आपको ऐसा होगा कि ठीक है आपने एक प्रोग्राम लिखा जिससे आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ये राज कौन से कॉलेज में क्या पढ़ा रहा है, यू गेट दिस वैल्यू, यू राइट वन प्रोग्राम एंड यू गेट दिस वैल्यू, ठीक है। अब अगर आपको रानी की इंफॉर्मेशन चाहिए, सो यू हैव रिटन अनदर प्रोग्राम। अब उसके बाद में आपको चाहिए कि किस किस का सपोज gmail.com पर किस किस का अकाउंट है, तो आपको वो इंफॉर्मेशन इसमें से मिल जाएगी। तो फॉर दिस यू हैव टू राइट 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स। अब हर एक क्वेरी के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम चाहिए, तो यू कैन राइट द प्रोग्राम इन C लैंग्वेज, तो आप उसमें से वैल्यूज रिट्रीव कर सकते हो। देन यू कैन यूज अगेन सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, टूल्स आप यूज, जैसे जावा यूज कर सकते हो, ये चीज़ें। तो इससे सबको आपको जो आपका आउटपुट है वो तो मिलेगा। But what happens कि for any specific thing you have to write a specific program. Second, when you use this kind of languages, you must note the exact location कि उसकी लोकेशन कहाँ पे, वो कहाँ पर स्टोर किया गया है। आया ख्याल में, उसका लोकेशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर स्टोर किया गया है। जैसे सपोज ये आपका एक डेटाबेस है, अब आपको इसमें से 1000 लोगों को इसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है। ये सपोज आपका डेटाबेस है, इसमें कुछ भी डेटा है। अब इसमें से इतने सारे लोग जो है, ये जो एरोज बताए, दिस मैनी नंबर ऑफ पीपल दे आर रिट्रीविंग द डेटा। अब हर किसी को फिर एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और सबको पता होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। सो दैट इज अगेन एन इशू। तो ये सारी चीजें, तो अब इसको देखते हैं। सो दैट योर डेटा शुड बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। आप डेटा को एक यूजर, मल्टीपल यूजर, सारे यूजर्स आराम से एक्सेस कर सको, मैनेज कर सको और अपडेट कर सको। इसलिए हमको जरूरत है डेटाबेस की, इसलिए हमको जरूरत है एक डेटाबेस की। और ये जो फिर डेटाबेस मैनेज होता है, इसके लिए हमको चाहिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वी नीड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाई वी नीड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? बिकॉज यू हैव टू एक्सेस एन नंबर ऑफ डेटा एट सो मेनी टाइम।
और ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम पे डेटा रखा है तो अदर सिस्टम पे अवेलेबल होना चाहिए। सच एज वी टॉक अबाउट क्लाइंट सर्वर, ये तो आपने सुना ही होगा नाम, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा डेटा है वो एक स्पेसिफिक सर्वर पर है, और वो सर्वर कहीं पर भी हो सकता है रिमोट लोकेशन पे। सपोज वो सर्वर अमेरिका में और आप लोग यहाँ से डाटा एक्सेस कर रहे हो, सो दिस इज द थिंग, तो आपको एक्सेस होना चाहिए। तो एक क्लाइंट सर्वर लोकेशन के लिए ये जो सारे कंसेप्ट है, दिस विल नॉट वर्क, हेंस वी रिक्वायर सच डीबीएमएस कि जहाँ पे हम छोटी छोटी क्वेरीज से डेटा को एक्सेस कर सके। तो अब इसके लिए क्या अवेलेबल है तो फिर एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड का डेटा आप एमएस एक्सेस से यूज कर सकते हो, नोटपैड के लिए आप सी प्रोग्राम यूज कर सकते हो, और बाकी सभी के लिए आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, दैट इज ओरेकल, सो यू कैन यूज दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। व्हाट दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डस, ये क्या करेगी, आपका डेटा एक सेंट्रल सर्वर पे लोकेट करेगी। सेंट्रल सर्वर मतलब जो कहीं पर भी लोकेट हो सकता है एट एनी रिमोट लोकेशन। At that particular remote location, the data will be available and you can retrieve data as and when required. जितना और जैसा आपको चाहिए उतना आप उससे रिट्रीव कर सकते हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिमोट लोकेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द डेटाबेस। द वेरी फेमस एग्जांपल एंड द मोस्ट एप्लीकेबल थिंग इज गूगल। जैसे गूगल है, गूगल का एक सेंट्रल सर्वर लोकेटेड है, और उसमें जब भी आप क्वेरी टाइप करते हो तो यू गेट सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स, आपको इतना सारा डेटा उसके ऊपर मिलता है। जिस तरह की आप क्वेरी डालते हो उस तरह का आपको डेटा उस पर मिलता है। सो the service is located at a remote place and you can access the data. So that is the part. तो इस सब के लिए भी हमको क्या चाहिए, DBMS, that is database management system. मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने रेलवे रिजर्वेशन की बात करी, तो अब अगर सपोज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, प्लीज लिसन इट केयरफुली। हम रेलवे रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो सपोज देयर इज वन पर्सन ए, इसको एक बुकिंग करना है फ्रॉम एक्स टू जेड, ये ट्रेन का, ठीक है, एक्स टू जेड एक ट्रेन है, यहाँ पर इसको एक सीट बुक करना है। तो अब अगर सपोज इसने कुछ ओपन किया वो डेटा और ये बुक करने जा रहा, तो सेकंड पर्सन जो है बी, उसको भी एक्स टू जेड सीट बुक करना है, उसी इसमें बुक करना है। थर्ड पर्सन है सी, उसको भी बुक करना है। और अब आप देख सकते हैं रेलवे में एक दिन में कम से कम लाखों रिजर्वेशंस होते हैं, एक ट्रेन में कम से कम हजारों रिजर्वेशंस होते हैं, कोई वेटिंग में आता है, कोई इसमें आता। तो आपको क्या चाहिए, रन टाइम ये सब मैनेज होना चाहिए। समझ में आ रहा चीजें? अगर आप सिस्टम में रखते थे आपका डेटा, तो सपोज आपने क्या किया, किसी ने यहां पर वैल्यू लिखा, ये यहां पर है, किसी ने यहां पर वैल्यू थी 31, हमने क्या किया कि यहां पर वैल्यू किसी ने चेंज करके 42 कर दिया। अब जब ये वैल्यू 42 चेंज कर रहा था, तो बाकी हमने क्या किया, इसको लॉक कर दिए ताकि कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर सके। जब तक ये पूरा अपडेट नहीं कर देगा तब तक दूसरे को इसका एक्सेस नहीं मिलेगा, तो उसने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। लेकिन ये रेलवे रिजर्वेशन में पॉसिबल है क्या कि अगर आप एक चीज को एक्सेस कर रहे हो तो उसको लॉक कर दिया जाए, दूसरे यूज ना कर सके? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे तो फ्रिक्वेंटली रिजर्वेशन होते हैं। तो फिर वहां पे कैसी सिस्टम होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि अगर सीट्स अवेलेबल है तो रन टाइम मतलब जो होता है, जो एक्चुअल डायनेमिक जिसको बोलते हैं रन टाइम होता है, वो सारी सर्विसेज दे आर रन टाइम थिंग्स। तो रन टाइम वो सारी चीजें होना चाहिए। तो इसलिए भी हमको जरूरत है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड कि अपडेट करना, रिट्रीव करना और उसको एक्सेस करना, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन वो सब चीजें अगर आपको बहुत बड़ा अगर डेटा रहेगा, जैसे 5 नाम अगर आपको डायरी में आप लिख लिया, आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन 5000 नाम आप देख नहीं सकते। 5000 नाम में आपको 10 नाम जो है बार बार रिपीट हो गए, तो आपको चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन एक ही बार स्टोर करो। जैसे सपोज मैं एक डिपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर है। सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट भी स्टोर है, सिर्फ नंबर मेरा सब्जेक्ट चेंज है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। सो दैट इज रिडंडेंसी, एक ही डाटा हम बार बार स्टोर क्यों करें? तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए वी रिक्वायर अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वी रिक्वायर अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Now we see, now we will go by the definition. It is a collection of interrelated data. A database is collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. It is a set of data that has regular structure and that is organized in such a way that computer can easily find the desired information. That has a regular structure and it's organized in such a way that computer can easily find the desired information. It can be generally looked as being a collection of records, each of which contains one or more fields, that is pieces of data about some entity, that is object. Database management system, container that hold database. It is a collection of interrelated data and set of computer programs to access those data. It was developed by E.F. Codd in 1970. तो अब इसमें यहाँ पे अब हमको समझ में आ गया। I hope you people understand कि what do you mean by data, what do you mean by a database and what is basically the need of a
डेटाबेस, डेटा मतलब क्या है, डेटाबेस मतलब क्या, और डेटाबेस की ज़रूरत क्या है, और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्या है. इट वॉज प्रपोज्ड बाय ए.एफ. कॉड इन 1970. एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस. तो हमने यहाँ पर देखे कुछ MS एक्सेस, MS वर्ड, SQL, नोटपैड. सो SQL दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओरेकल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस है जो मैक्सिमम यूज होते हैं. नाउ यहाँ पे हमने एक और पार्ट देखा इसमें. इन दिस डेफिनेशन, डेटाबेस इज सेट ऑफ डाटा दैट हैज रेगुलर स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, आई विल टेल यू वन मोर पार्ट. ऑल द इंफॉर्मेशन और डेटा में एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. जैसे हमने बताया कि भाई कि सपोज आपने मुझे कॉल करके पूछा कि सपोज आपको एक कॉल आया कहीं से कि सितना कॉलेज का टाइम जो है वो 10 से 12 है मॉर्निंग. सो व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन हैज डू टू विथ यू. ये इंफॉर्मेशन का आपके साथ क्या कंसर्न है, कुछ भी नहीं. तो ये आपके लिए डेटा हो गया, ये आपके लिए कोई ज़रूरत की बात नहीं. दूसरा कॉल आपके लिए है कि सपोज बडनेरा कॉलेज में जो है जो पार्किंग है वो एक बहुत बढ़िया पार्किंग बनाया हुआ है, बट आपको उससे क्या करना है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू कि अगर आपको थर्ड कॉल आता है कि सर डियर स्टूडेंट योर कॉलेज विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, द लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम. तो ये जो चीज़ है ये आपके काम की है, तो ये आपके लिए होगी इंफॉर्मेशन. सो डेटा मतलब कुछ भी हो सा, इट इज रैंडम थिंग, बट इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच इज प्रोसेस डाटा एंड विच हेल्प्स यू फॉर डूइंग सर्टन थिंग्स. जैसे अब आपको पता चला कि कल मॉर्निंग का कॉलेज है तो आप सुबह कॉलेज में आऊँगा, सो दैट इज इंफॉर्मेशन. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इन सब का कलेक्शन जो है वो होता हमारा डेटाबेस. रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच वी कैन यूज फॉर एनीथिंग, जो हमारे बहुत काम की है. अब हमारी कई सारी इंफॉर्मेशन काम की होती है. सो द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस इज डेटाबेस. और इन सब को मैनेज करना, एक्सेस कैसे करना, इजीली रिट्रीव कैसे करना, अपडेट कैसे करना, इस सब के लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब जितना भी जो डेटा इट इज अ रेगुलर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब ऐसा होता जैसे सपोज हमने डिफरेंट एंटिटीज है. जैसे अब अगर पैसे की बात करोगे तो इट इज इन रुपीस. अगर उसके बाद में आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो अलग है. अगर आप व्हीकल्स की बात करोगे तो वो डेटा अलग है. तो जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो जैसे आप कैरेक्टर लोगे तो जैसे नेम आपने स्टोर किया सो दीज आर कैरेक्टर्स. आपने कोई नंबर स्टोर किए तो वो इंटीजर हो सकते, फ्लोट हो सकते और कोई सारी चीज़ें हो सकती. तो ये सब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में एक टेबल में स्टोर करना, दैट इज द स्पेसिफिक डाटाबेस. अब यहां पर देखो, यहां पर इतनी सारी एंटिटी है. ये है नेम, तो ये आएगा आपके कैरेक्टर दैट इज ABCD में. ये दिस इज मोबाइल नंबर, इट इज इन नंबर्स. ये ईमेल आईडी जो है ये अलग इसमें रहेगा. एज इज ऑल्सो नंबर. ये दिस इज सिटी, दिस इज अ कैरेक्टर. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे आपने जिस तरह से स्टोर किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कैरेक्टर्स हो गए, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गए. तो दिस थिंग्स, सो स्टोरिंग ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग एंटिटी, मोर देन वन नंबर ऑफ फील्ड और अलग अलग उनका एंटिटी है. जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट है कि एक एज एक इंटीजर में स्टोर होगा. सपोज जो आपकी सब्जेक्ट है वो कैरेक्टर आएगा, सिटी आपका सिटी में आएगा. So this all collection that is database management system. Now I think it is clear for you people that why do we need database and what is its importance. So here you can easily understand these things. Database is collection of intelligent data and set of computer programs to access those data. अब उसके बाद में देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस. सो दैट इज वेरी इजी टू फाइंड. बैंकिंग एप्लीकेशन, इसमें आता है कोर बैंकिंग, नेट बैंकिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड, मतलब बैंकिंग के जितने सारे एप्लीकेशंस दे आर यू रिक्वायर डेटाबेस. उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता एयरलाइंस, टिकट रिजर्वेशन, शेड्यूल प्रिपरेशन, देन यूनिवर्सिटीज, एग्जाम, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कोर्स रिजल्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, अकाउंटिंग, HR, ह्यूमन रिसोर्सेज. अब देखते हैं बैंकिंग में सपोज कोर बैंकिंग. नाउ यू सी कि बैंकिंग में आप आपके अकाउंट में पैसा डालते हो तो आपके पहली बात तो आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग्स है, करंट है, सैलरीड अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, OD अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है. आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो या फिर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करो, चाहे आप कहीं से भी करो, लेकिन आप आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हो. यू कैन चेक एनी टाइम व्हाट इज द अमाउंट दैट इज इन योर पर्टिकुलर अकाउंट. आप आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो चेक कर सकते हो. फिर उसके बाद में अपने अकाउंट से पैसा ATM से विड्रॉ कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हो, नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक में जाके स्लिप दे के ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो आप कहीं से भी कुछ भी प्रोसेस करते हो तो पर्टिकुलरली अपडेट होना चाहिए आपके अकाउंट के साथ. सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम.
कि इतना सारा डाटा है, वहाँ पे सपोज 10 लाख कस्टमर है, 20 लाख कस्टमर है, कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से, कोई मोबाइल बैंकिंग से कर रहा है, कोई नेट बैंकिंग से कर रहा है, कोई बैंक में जाके कर रहा है, कोई किसी और चीज़ से कर रहा है, कोई एटीएम कार्ड से पेमेंट कर रहा है, कोई वही बैंक के एक उनके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, वो जो उस अकाउंट को रिलेटेड है, तो किसी भी तरह से पेमेंट हो रहा है या किसी भी तरह से पेमेंट आ रहा है, तो वो सब पर्टिकुलर अकाउंट में अपडेट होना चाहिए, एंड नॉट फॉर वन पर्सन, फॉर ऑल द पर्सन, एंड दैट इज साइमल्टेनियसली। ऐसे नहीं कि आपने आज पेमेंट किया मोबाइल से तो कल अपडेट हुआ, इट इज इंस्टेंटली। तो इस सब के लिए हमको क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए मुझे बहुत ही जबरदस्त डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ डाटा and you can update edit that data at a particular time, and that is also run time। मतलब जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन शुरू है, फॉर एग्जांपल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एक बंदा बुक कर रहा है और उसको टिकट मिल रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो टाइम पे दूसरा बुक नहीं कर रहा है, वो भी बुक कर रहा है, इसको भी मिल रही है टिकट, उसको भी मिल रही है, लेकिन जब वेटिंग में आएगा तो ऑटोमेटिकली इसको पता चलेगा वेटिंग में है। तो ऐसा नहीं है कि अब एक ही पर्टिकुलर पर्सन एक्सेस कर रहा है। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट अब आपकी समझ में आई, इसके लिए हमको चाहिए अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दैट इज why we need a database management system। So for this particular first lecture, I think this is enough from our side। What you should do, just go through these concepts, what is data, what is information, what is database, and what is database management system, and what are its applications। See you in the next class. Till then, thank you class, good day।